हम बात कर रहे थे कि किस प्रकार से बंदिश में आलाप लिया जाता है, विलंबित ख्याल के विषय में हम जब बात कर रहे थे, तो अभी हम उसके कुछ छोटे छोटे आलाप आपको बनाकर तबले के साथ हम बताते हैं, जो कि 3 ताल में निबद्ध है। आगे चलकर आलाप किस प्रकार से विलंबित ख्याल में होता है, ये भी आपको इसी प्रक्रिया के अंतर्गत हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो पहले हम बंदिश को 3 ताल में किस प्रकार से उसका आलाप लेते हैं। राम को नाम साचो सहाय राम को धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता राम को नाम। हमें पता चल गया कहाँ से मुखड़ा 3 ताल चल रहा है, हम कैसे अपना आलाप लेंगे। देखिए, पहले एक बार मुखड़ा उठाते हैं, धा धा तिन तिन ता राम को नाम धा द सा रे सा राम को नाम। तबला चल रहा था, मैंने जो स्वरों में जो स्वर समुदाय आपको बताए हैं आलापचारी ने, उसी को इसमें प्रयोग किया है। कैसे? तिन ता राम को नाम ध सा रे सा राम को नाम। कोई काउंट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ध्यान रखना है धा तिन तिन ता कहाँ पर आया, और आपने उसके बाद मुखड़ा उठाना है। राम राम को नाम द रे द सा रे सा राम को नाम। इस प्रकार से मंत्र के स्वरों को लेके आप उसको बना सकते हैं। आगे देखिए, धा धा के तिन तिन ता राम को नाम सा गा ग रे सा राम को नाम सा गा द सा राम को नाम। We have to take those phrases which are the main in Rag Bhairav, so that it can be very clear while singing the alap that we are doing the Vistar of Rag Bhairav. So we have to keep in mind the Bhairav Ang has to be sung again and again. Dha,
धा धागे तिन तिन तारा आम को नाम सागा गमरे सा सद दरे सारा Now, after singing the small alap, we can go to the longer one also. The tal is there. Continuously the tal is being played on tabla. Now it depends on us whether we sing a small alap or a longer one. While singing with the teen tal, we can sing the smaller one. After that we can proceed to the bigger one. But while singing the bandish in Adtalis or Vilambit Ektal, we have to keep the alap chari till we come to that matra from where the mukhada is sung or the mukhada is taken. So, but in teen tal, this is the advantage that we can, for the practice, we can sing the small alaps again and again. Or if we think that now we are quite confident with the smaller one, we can proceed to the longer one. The avartan will be played again and again. There can be 2, 3, 4 avartans according to our विस्तार. यानी हम जो विस्तार कर रहे हैं, आवर्तन का मतलब होता है एक चक्र पूरा, यानी कि एक पहली मात्रा से लेके हम जो 16 मात्रा तक का पूरा एक सर्कल है, दैट इज कॉल्ड आवर्तन. अब इस आवर्तन में हमारा आलाप देखिए. राम को नाम साजो सहाय राम को नाम You can sing the alap as much as you can, but the avartan you can take 2, 3, 4 avartans, but the circle or the teen tal will be the same. Raam ko naam saga ma pa gamada pa sagamada pa da ma pa dha ma pa ga ga ma re re sa sa da da sa da re sa ra ma ko na. I have taken a long alap or the bigger one, which took many avartans, 4, 3, 4, or maybe it can be 5 while singing teen tal. Suppose we sing the alap in ek tal vilambit. How it is going to be? Let's see. Raam ko naam sajo sahaya
sa ga ma re re sa ga da re da sa ra ha ma kho na sa ga ma pa ga sa ga ma da pa ga ma da ma pa ga sa ga ma pa da pa ga ma re re da re da sa ra ha ma ko na. Now when we compare the alapchari of this Vilambit Khyal in teen tal or in ek tal, naturally ek tal consists of 48 beats, so the alap will be a longer one. But when we sing in teen tal, the alap can be small one also and it can be the longer one also. It depends on us how we sing or how much alapchari we do. But that does not mean that it has to be the endless. We have to follow the Swasthan Niyam. That means in the beginning, while singing the Vilambit Khyal, in the beginning the alap has to be on Shadj or taking the swaras of the Mandra Saptak, slightly going towards the Gandhar. Then after some time we'll move towards the Madhyam Pancham. After that Dhaivat, Nishad, Shadaj and Tar Saptak onwards. So this is how the alapchari has to be done in any of the rag. Now when we are singing Rag Bhairav, especially this bandish, the same method will be applied here also. हम आलाप की बात करते हैं और एकदम अक्सर विद्यार्थी क्या करते हैं, जब आलाप लेते हैं तो वो एक ही आलाप में वो शुरू करते हैं, सीधे तार सप्तक पे होके चले आते हैं, क्योंकि उनको ये समझ में नहीं आता कि हम आलाप को कैसे करें, क्योंकि उनके दिमाग में वो आलाप के उस राग के स्वर ऐसे घुसे होते हैं कि वो उसको उनको ये समझ में नहीं आता कि विस्तार कैसे करें। यहाँ पर कई चीज़ें हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। जैसे मैं पहले के अपने एपिसोड्स में बता चुकी हूँ कि स्वरों का जो स्थान है उसके एक नियम है, उसको आपको पालन करना है। यानी 4 फ्रेजेस ऑफ आलापचारी, 4 अलग अलग जो उसके स्थान हैं स्वर विस्तार के, उसका ध्यान में रखना है। दूसरी बात न्यास के स्वरों का ध्यान में रखना है। और तीसरी बात जो स्वर संगति है उसका ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं कि राग भैरव में सारे गा मरे सारे गा मदा, ये भी गलत नहीं है। लेकिन जब हम कहते हैं कि बिल्कुल प्योर फॉर्म ऑफ जो राग है राग भैरव, या उसकी स्वर संगतियों का ध्यान रखते हैं, तो उसमें हम सा ग का प्रयोग अधिक देखते हैं। सा ग मदा, ये सुनने में भी बहुत अच्छा लगता है और राग को संभालने में, राग के बैलेंस को बनाने में भी बहुत खूबसूरत लगता है। सा ग मदा पद म प ग म रे सा द सा रे सा, तो जो स्वर संगतियां हैं उनसे ही जो है इसका विस्तार किया जा सकता है। स्वर संगतियां बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम किसी प्रदेश की बात करते हैं, उदाहरण के तौर पे हम किसी प्रदेश की बात करते हैं, उसकी संस्कृति को जानने के लिए, उस प्रदेश को जानने के लिए उसकी संस्कृति पे जाएंगे। स्वाभाविक है, संस्कृति को जानने के लिए क्या क्या मेन आयाम है संस्कृति के, उनको देखेंगे। और उसमें से ऐसा नहीं कि हम सभी को कवर अप करेंगे, पर हम जो खास है उन पे हमारा ज़्यादा ध्यान होगा। तो यही बात यहाँ भी लागू करती है। जब हम रागों का विस्तार करते हैं तो हम ये देखते हैं किस स्वर पर न्यास है, किस स्वर पर जो है न्यास नहीं है, अल्पत्व और बहुत्व किस में है, उसका ध्यान रखना है। दैट मीन्स यूजिंग एनी नोट इन अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी और इन अ लार्जर वन। Where we can do in the larger one, obviously the nyas will be there. Which swar sangati has to be sung? This is also very important.
sa ga ma da pa sa re ga ma pa da pa. This is also right, but it doesn't sound that much appealing to us when we are singing Rag Bhairav, or if we say again and again, if you're going to sing it, it won't give that much beautiful effect as sa ga ma da is giving. Sa re ga ma pa da. We can use this also, but sometime, only sometime if we use it, then it sounds beautiful. But normally sa ga ma da, madhyam dhaivat sangati is important, sharaj gandhar sangati is important, ga ma ga pa, gandhar and pancham sangati is important, dha pa da sa da pa, dhaivat and sharaj sangati is also important, da sa da re sa, dhaivat and rishabh is also important. So we have to see it overall, and then before applying our alapchari with the bandish, we have to first keep in mind the main important features, the main important phrases, the main important swar sangatis of the rag. तभी तो हम एक अच्छा आलाप कर पाएंगे, और उस स्वर को जो स्वर उसमें बहुत महत्वपूर्ण है, उस पे आप टिकाव या हम कहें न्यास कर सके, इसका भी ध्यान देना है। गलत स्वर पे या किसी ऐसे स्वर पर न्यास करें जिस पे नहीं करना होता है, तो राग के स्वरूप को नुकसान पहुंचता है या राग के भाव को नुकसान पहुंचता है। वो ये भी हो सकता है किसी और राग की छाप जो है हमें वहां देखने को मिले। तो राग को जब गाएं तो राग को बिल्कुल प्योर फॉर्म में उसको गाना चाहिए। So we have to keep in mind all these points while we are performing or while we are doing the alapchari. Now let's do an alap in Vilambit Ektal, that is the 48 beats Ektal, while singing the bandish. I am singing the style of the bandish in Vilambit Ektal, and as I gave you the example before also, now this time also let me try the alap, showing the nyas swaras. Rama ko Rama, Radha re sa, sa ga ma re sa. You know these swar sangati. Sa ga ma da pa, pancham is a nyas swar, ga ma da da pa, pa da ma pa ga, sa ga ma da pa da ma pa ga, ga ma re da sa da re sa ra leaving the notes, if we are going to put the bolds or the lyrics, taking the wordings of the lyrics, then we can also explore while doing the alap. विद्यार्थी अक्सर कहते हैं कि बोल आलाप कैसे किए जाते हैं। बोल आलाप बहुत सहज है कि जो आलाप जो आप स्वरों से विस्तार कर रहे हैं
उन्हीं स्वरों पर आप शब्द डाल दीजिए, बोल डाल दीजिए जो कि बंदिश के बोल हों, यानी कहीं से भी कोई बोल जो बंदिश के, विशेषकर जो बंदिश की प्रथम पंक्ति हो। फिर से देखिए, रा को ना, अब ये ध्यान दीजिए जिसमें कि वॉवल साउंड है। राम को AEIOU, ये वॉवल साउंड जिसमें आते हैं, बड़ी मात्रा जिसे कहा जाए। अब यदि मैं इसको गाती राम, राग के हिसाब से गलत नहीं है, लेकिन मुझे कंफर्ट नहीं है उसको गाने में। देखिए कितना अच्छा हम लोग का ये सोच है इसमें कि जहाँ साहित्य भी और संगीत दोनों साथ में आ रहा है। अब राम को नाम सांचो सहाय जो हम गा रहे हैं, इसमें हमें देखना है कि बड़ी मात्रा किसमें, हम जब नाम बोलेंगे तो आ आता है, राम बोलेंगे तो आ आता है, सांचो में ओ आता है, सहाय तो सहाय, हा पे आ की मात्रा आती। तो जब विस्तार करना होता है तो उसमें इन शब्दों पर और इन अक्षरों पर विस्तार अधिक किया जाना चाहिए। लेकिन जो मैं बार बार विद्यार्थियों से कहती हूँ कि साहित्य का पूरा पूरा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जब हम कह रहे, यदि हम कहते हैं सा, अब जो श्रोता है, जो सुन रहा है, उसको भी तो पता चलना चाहिए कि क्या बोलना चाह रहे हैं हम। सांचो सहाय, सांचो, तो ये शब्द एकदम से पकड़ में आ जाएगा कि हम सांचो कह रहे हैं। सहाय सहाय, अब यदि मैं इसकी जगह कहती हूँ सहाय, ये कहीं ना कहीं हमारे इस पोर्शन पे जोर डालता है, आवाज के, हमारी जो मुंह से जो हमारी आवाज बाहर है वहां पे भी कहीं पे रोक लगाता है। तो इसीलिए ये एक तरह से हर्डल है, एक तरह से रुकावट होती है हमारे आवाज के विस्तार में, या हम कहें कि जो हम पढ़ते हैं वॉइस कल्चर, ये वॉइस कल्चर क्या है, यही सब तो चीज है कि किस प्रकार से आवाज को बनाया जाना चाहिए। तो हम कभी कभी जाने अनजाने शब्दों को ऐसे लेकर इस प्रकार से विस्तार करके हम अपनी ही प्रोग्रेस को रोकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि जिनमें वॉवल साउंड आता है उसका ही आप विस्तार करें, और वो आप देखिए, करके देखिए, आपको बहुत सहज होगा। कभी भी गला जो है वो खराब नहीं होगा इस प्रकार से आप यदि रियाज करते हैं। यदि आप गलत तरीके से रियाज करते हैं तो गले के किसी भी पोर्शन में कहीं पे भी गलत आपका असर पड़ता है। और यही कारण है कि बहुत से लोग शास्त्रीय संगीत के प्रति जो है उनकी एक रुचि जो है वो कहीं पे कम होती, क्योंकि जब समझ में नहीं आएगा कि अगला क्या गा रहा है तो उसके प्रति रुचि देर से उत्पन्न हो सकती है या कम हो सकती है। तो यदि हम शुरू से ही उसको बहुत क्लियरली उसको समझें तो मुझे लगता है रुचि का उजागर होना जो है वो बहुत ही आसान है। तो साहित्य, दूसरी तरफ साहित्य का भी ध्यान हमें रखना चाहिए। तो जब हम विस्तार करें तो उसको कोशिश करें कि विस्तार हम वॉवल साउंड या बड़ी मात्राएं जिसमें है, दीर्घ जो हैं, उन मात्राओं का जहाँ प्रयोग होता है उसको ही हम विस्तार करें। तो इस प्रकार से हम अपना आलापचारी जो है उसको हम गा सकते हैं विलंबित ख्याल में, और यही प्रक्रिया आगे चलकर तानों में या बोल बनाने में या लयकारी से जब हम बंदिश को लयकारी करते हैं बंदिश में, उस पर सभी में यही चीजें ही अप्लाई होती हैं। सो आई थिंक द what I wanted to explain you, which was very important, and students used to ask again and again, what is the process to do alapchari while singing the Vilambit Khayal. I gave you an example with the help of Teen Tal, also with the help of Vilambit Ek Tal, and I hope it has been clear to you now. And now you do the practice and you can see it practically yourself that yes, you can do the alap. इसी के साथ आज का व्याख्यान यहीं पर संपन्न करते हैं। नमस्कार।